Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Today I am going to explain you lesson number 5, the Sumit Within. Introduction. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. How did he feel when he stood on the highest point in the world? Let us hear his story in his words, climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. Major HPS, full form Haripal Singh Ahluwalia, was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर HPS Ahluwalia 1965 में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पहले सफल भारतीय अभियान के सदस्य थे. In this lesson, he has talked about his experience of climbing the world's highest summit. इस लेसन में उन्होंने दुनिया के हाईएस्ट शिखर पर चढ़ने के अपने अनुभव के बारे में बात की है. He tells the readers how the physical contest changes one on a personal or spiritual level. को बताता है कि व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यानी पर्सनल और स्पिरिचुअल लेवल पर भौतिक विजय कैसे बदलती है. आफ्टर टॉकिंग अबाउट क्लाइंबिंग द फिजिकल सुमिट, he has also talked about the task of climbing the summit within. भौतिक शिखर पर चढ़ने की बात करने के बाद उन्होंने शिखर पर चढ़ने के कार्य के बारे में भी बात की है. Now I am going to explain lesson paragraph wise. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. लेखक ने कई भावनाओं की भीड़ के बारे में रीडर्स को बताकर कहानी शुरू की है. जो उसने महसूस किया है कि वो माउंट एवरेस्ट के उच्चतम बिंदु यानी हाईएस्ट सुमित यानी सुमित ऑफ एवरेस्ट पर उच्चतम बिंदु पर खड़ा था. उनके नीचे के विशाल चित्रमाला ने उन्हें थोड़ा और मामूली महसूस कराया. द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक यू गॉड, इट्स ऑल ओवर. हाउएवर, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness. ऊपर तक चढ़ने से उसे इतना थका दिया था कि उसकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो गई थी. हालांकि हाईएस्ट शिखर पर चढ़ने पर गर्व और खुशी महसूस करने के बजाय वह अपने भीतर कुछ उदासी को महसूस कर सकता था. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? इस भावना का एकमात्र संभावित कारण ये हो सकता है कि वह अब उच्चतम बिंदु यानी हाईएस्ट पीक सुमित ऑफ एवरेस्ट पर चढ़कर कुशल हो गया था और उस सुमित से सभी सड़कें केवल नीचे की ओर जाएंगी. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर यानी शिखर यानी सुमित पर चढ़कर आप खुशी और धन्यवाद की गहरी भावना से उत्तेजित यानी एक्साइटेड हो जाते हैं. यह एक ऐसा आनंद है जो जीवन भर रहता है और अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है. पहाड़ों पर गया आदमी फिर कभी वैसा नहीं रहा. As I look back
at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other Sumit, the Sumit of the mind, no less formidable and no easier to climb. इसमें ऑथर ये कहते हैं कि जब भी वह एवरेस्ट की चोटी पर यानी शिखर पर चढ़ने के बारे में सोचते हैं तो वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सुमित के बारे में सोचता है यानी शिखर के बारे में सोचता है जो कि मन का है, जो या तो चढ़ाई करना आसान नहीं है या कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं है यानी चैलेंजिंग. Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then what would remain? Would my memories fade slowly away? एक बार जब वह एवरेस्ट पर चढ़ गया यानी ऑथर तो लौट आया और शारीरिक थकावट से उबरने के बाद उन्होंने खुद से इसका कारण पूछना शुरू कर दिया कि वह सबसे ऊंची चोटी पर क्यों चढ़ा. यह समझना काफी मुश्किल था कि हर समय उसकी इमेजिनेशन यानी कल्पना पर उसका असर क्यों पड़ रहा है. जब वह अतीत की बात थी, अतीत यानी पास्ट, वह जानता था कि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा अनुभव यानी एक्सपीरियंस पुराना होता जाएगा. उसी क्षण, क्षण इट मीन्स मोमेंट, वह अनिश्चित इट मीन्स अनश्योर था कि स्मृति यानी याद, उसकी याद बनी रहेगी या धीरे धीरे वो दूर हो जाएगी. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. It is not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is there, it presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. लेखक यानी ऑथर के दिमाग में आए सभी विचारों ने उसे खुद से पूछा कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं. ये सबसे आसान भी नहीं था क्योंकि यह हो सकता है, क्योंकि ये वहाँ है. एक पहाड़ पर चढ़ने से बड़ी चुनौतियाँ पैदा होती हैं और हम सभी जानते हैं कि इन बाधाओं इट मीन्स ऑब्स्टिकल्स पर काबू पाने से पर्वतारोहियों इट मीन्स माउंटेनियर्स जिसको कहा जाता है, जो पहाड़ पर चढ़ते हैं उनको खुशी मिलती है. एक पहाड़ पर चढ़ने में ये ऑब्स्टिकल्स यानी बाधाएं शारीरिक होती हैं, जैसे कि सहनशीलता यानी एंड्योरेंस, इच्छा शक्ति यानी रेजिस्टेंस और दृढ़ इच्छा शक्ति यानी हमारा जो विल पावर है आपको बनाए रखती है. और इन सभी गुणों की जो प्रदर्शनी और उनके प्रति जो हमारे अंदर जागरूकता आती है और दूसरी ओर रोमांचककारी हैं. और लेखक के लिए भी यही स्थिति थी यानी ये सारी जो बातें जो क्वालिटीज़ बताई गई है उस टाइम लेखक के लिए भी सारी यही बातें उस समय थी. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. फ्रॉम माई चाइल्डहुड I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. लेखक यानी ऑथर के पास इस सवाल का अधिक पर्सनल आंसर है यानी व्यक्तिगत उत्तर है कि वह पहाड़ों पर क्यों चढ़ना चाहता था.
वह बचपन से ही पहाड़ों से बेहद अट्रैक्टेड थे, यानी आकर्षित थे। पहाड़ों से दूर होने पर वह मैदानों में खोया और दुखी महसूस करता था। उसे लगता है कि पहाड़ अपने सबसे अच्छे रूप में प्रकृति है, यानी नेचर है, लेकिन उनकी जो सुंदरता है वो एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ऑथर बहुत सारे लोगों के साथ ये मानते हैं कि पहाड़ पर्सनल थॉट्स यानी व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं यानी फीलिंग्स को भगवान के साथ सीधे साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। यानी अगर हमें अपनी पर्सनल थॉट्स और फीलिंग्स यानी भावनाओं को भगवान के साथ सीधा हम उनके साथ जैसे बातें कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, तो वो हमें एक मंच प्रदान करते हैं। Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake, and the passage back is as difficult as the passage onwards. And then, when the summit is climbed, there is an exhilaration, the joy of having done something, the sense of battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. ऑथर ये कहना चाहते तो एक बार पता चला कि पहाड़ों पर चढ़ने का सवाल क्यों, एवरेस्ट क्यों बाकी है। शायद इसीलिए कि ये दुनिया में सबसे ऊंचा है और इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे लोगों को कई प्रयास यानी अटेम्प्ट्स का विरोध किया गया है। एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने के लिए ये एक शरीर में हर ऊर्जा के लिए पूछता है। ऊर्जा इट मीन्स एनर्जी के लिए पूछता है। ये बर्फ और विशाल चट्टानों के साथ एक कठोर संघर्ष है। कठोर संघर्ष इट मीन्स ब्रिटल स्ट्रगल। एक बार जब आप इस कठिन चुनौती को ले लेते हैं तो जीवन को दांव पर लगाने के बावजूद आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि पीछे की तरफ जाने पर वही कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं जो ऊपर की तरफ होती हैं। जब अंत में इन सभी डिफ़िकल्टीज़ पर आप काबू पाने के बाद व्यक्ति यानी इंसान जब उस शिखर पर पहुंचता है तो उपलब्धि, उत्साह, खुशी, जीत और खुशी की भावनाएं होती हैं। युद्ध लड़ने और जीतने की भावना है। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself, which can only be called mystical by its beauty, aloofness, might, rigidness, and the difficulties encountered on the way. The peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. ऑथर कह रहे हैं कि दूरी से एक चोटी की झलक मुझे दूसरी दुनिया में ले जा रही है। मैं अपने भीतर एक बदलाव का अनुभव करता हूँ जिसे केवल रहस्यमय कहा जा सकता है। अपनी सुंदरता, आलोचना, हो सकता है असभ्यता और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से शिखर मुझे अपनी ओर खींचता है, जैसे कि एवरेस्ट ने किया था। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका विरोध करना मुश्किल है।